गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. होमवर्क डन. होमवर्क बोल तो ये जो हमने क्लास में किया था वो किया क्या? एवरीबडी गॉट इट? प्रोजेक्टर देखो ना यार, अब मुझे मालूम नहीं कौन सा क्या है. ए भाऊ भाऊ राहू दे. नवनाथ काका. We are now supposed to solve this problem where you calculated surplus capitals. Now we will be preparing the statement showing distribution of cash. 31st problem we were solving. चलो फटाफट. Date. Dates are very important in life, so write down 1st April 22. Tell me what is the balance? 5,000. Second particular column, balance is brought down. Creditors, bank overdraft. No, bank overdraft 2000. Why 2000? Read it. It is given below. Bankers could realize only 68,000 on sale of pledged stock. मतलब stock was given as security against the bank overdraft, तो वैसे वो secured हो गया. But banker could realize only 68,000, whereas the bank overdraft amount was 70,000. So remaining 2,000 are to be paid, and remaining 2,000 will be paid as unsecured. ध्यान दो, बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड था, बट सिक्योर्ड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक. तो स्टॉक में से कितना कवर हुआ? तो बचा हुआ 2,000 जो है पे करना है, बट विल दैट बी सिक्योर्ड? नो. सिक्योरिटी बोल के क्या दिया था बैंकर को? स्टॉक. एंड अगेंस्ट द स्टॉक बैंकर कुड रियलाइज ओनली 68,000. So remaining 2,000 is to be paid to the bank, but that will be paid as unsecured. It means it is to be treated as good as creditors. So 2,000. Then B's loan 50. Capital balance is 154, 50, 50. Read the information given below. A creditor for 8,000 agreed to forgo 2,000, while claim of an unrecorded creditor for 1,000 had to be admitted. Creditors had given discount of 2,000 rupees. Agreed to forgo matlab discount is given of 2,000. But there was unrecorded creditor of 1,000 that needs to be paid. So 1,000 rupees to be added to the creditor of unrecorded. So second particular column, add unrecorded creditor oblique general reserve. Got it? Unrecorded creditor will be added to the creditors column, and general reserve 3:2:1 na. So 7,500, 5,000, 2,500. Subtotal. Creditors 17,000. What about capitals? 161, 500, 55,000,
52,500. Then it is given a sum of rupees 2,500 was kept reserved for meeting the realization expenses, and actual expenses of 2,000 were met finally on 15 July. Okay. When is the first realization? May. So May 2022. Plant and machinery realized rupees 1,75,000 after meeting brokerage rupees 5,000. Plant and machinery realized. How much? 1,75,000. Subtotal. One lakh 80,000. Please read the information given below. A sum of 2,500 was kept reserved for meeting realization expenses, and actual expenses of 2,000 were met finally on 15th July. So less reserve for expenses. How much is reserved? Balance 177,500. Which liabilities are to be paid first? नहीं secured तो है ही नहीं ना. No, we don't have secured. Creditors and bank overdraft both. सिर्फ क्रेडिटर्स नहीं बोल सकते, बैंक ओवरड्राफ्ट भी तो अनसिक्योर्ड ही है ना. अब दोनों को साथ में देना पड़ेगा. क्रेडिटर्स के केस में लिखा हुआ है क्रेडिटर फॉर 8,000 एग्रीड टू फॉरगो 2,000. अनरिकॉर्डेड के साथ क्रेडिटर्स कितने थे? 17,000. 17,000 with unrecorded of 1,000. So 2,000 rupees discount is received. So 15,000 will be paid to creditors and bank overdraft 2,000. So what is the total amount to be paid? 17,000. Payment to creditors and bank OD. How much? $17,000. Second particulars, payment of liabilities. $15,000 in creditors column, 2,000 in bank overdraft column. Balance in cash 160,500. Discount allowed by creditors close
creditors column as well as bank OD dash. बरोबर. Whose turn is it now? After payment of unsecured liabilities, whose turn? B's loan. How much? 50,000. You have sufficient balance? Less payment of B's loan. $50,000. Payment of B's loan 50,000. Balance in cash 110, 500. And balance in B's loan आया. अब इसके बाद सरप्लस कैपिटल्स किसका है? कितना? 4,000 है. लेस पेमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल कितना देना है उसको? 4,000. पेमेंट टू ए 4,000. Balance in cash 1,06,500. Balance in capitals 157,500. 55,000. 52,500. आया. Now after this, 1 minute, there is doubt. सर बैंक ऑर्डर ऑफ 2,000 क्यों लिया? एक बार फिर से बताओ. प्रॉब्लम पढ़ो बेटा, थोड़ा सा दिया हुआ जो दी हुई बैलेंस शीट है उसके नीचे का सेंटेंस पढ़ो. Bankers could realize only 68,000 on sale of pledged stock. बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट है कितनी दी हुई प्रॉब्लम में ओरिजिनली? चैताली, उत्कर्षा, तुम्हारा डाउट है, आंसर दो बेटा. बैंक ओवरड्राफ्ट 68,000 नहीं है रे, 70,000 है दिया हुआ. 68,000 कहाँ दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट? लाइबिलिटी साइड में कितना है? 70,000, right? So against this 70,000, stock is realized by bankers for 68,000. तो 70,000 के बैंक ओवरड्राफ्ट के अगेंस्ट में 68,000 बैंकर्स ने स्टॉक बेच के ले लिए, तो कितना बच गया? अभी समझा? चले आगे. हाँ, 1,06,500
और कैपिटल्स के बैलेंसेस लिख दिए सबने। अब किसकी बारी? ए और सी की। कितना देना है उनको? कितना कितना? 1 लाख रुपए है ना अपने पास? पेमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल्स 1 लाख। पेमेंट टू ए एंड सी। कितना कितना? 75,000, 25,000। बैलेंस इन कैश 6,500 and balance, बोलो, 82,555 आ गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सरप्लस कैपिटल पे होते ही। समझा सबको? देन अब ये 6,500 क्या करें? लेस पेमेंट ऑफ कैपिटल्स, $6,500 पेमेंट टू ऑल इन PSR। बोलो, 3, 2, 2167 11083। बैलेंस इन कैश डैश बैलेंस इन कैपिटल्स। करो कैलकुलेट। 52, 833 and 26, 417। कहाँ पे? 52,833 बरोबर। अब अगला रियलाइजेशन कब है? जून। डेटर्स रियलाइज्ड कितना? 75,000। नो कंफ्यूजन, पेड टू ऑल लेस पेमेंट ऑफ कैपिटल्स
Payment to all in बोलो क्या क्या पेमेंट आएगा? 37,500, 25,000, 12,500. Balance in cash dash and balance in capitals 41,750. 27,833, 13917. Got it? आया सबका? Next realization. July. What has happened in July? Debtors realized. $15,000. I think this is last realization. Read what is given below. Remaining debtors were taken over by C for 5,000 who contributed the said amount in cash. ये तो दिया है कि कैश लाया उसने, नहीं भी देते तो भी लेते ही थे हम. लेस रिमेनिंग डेटर्स टेकन ओवर बाय सी. क्या हो गया? हाँ ऐड ही करना है ना. लिसन केयरफुली, डोंट डिस्टर्ब. लेस बोला क्या मैंने? टंग ऑफ स्लिप. उसमें भी टंग ऑफ स्लिप हो गया क्या? रिमेनिंग डेटर्स टेकन ओवर बाय सी. कितने में? कैसे सुस्ताड़ हो गए सब, मद्दड़ खाना खा के मस्त बैठे है, हाँ ना. मंद मठ ढ माठ मति मंद. नहीं नहीं नहीं, गाली नहीं देता. नालायक गाली हो गई ना. विनोद सर देते, विनोद सर देते बोल तो मैं दूंगा ऐसा जरूरी थोड़ी है. नो बैड वर्ड्स इन द क्लास. मंद मठ ढ माठ मथी मंद, ये प्यार भरे शब्द है. हाँ, ये मेरी भावनाएं हैं आपके प्रति. ढोकड़िया ढोम्या ठोम्ब्या. और मैं ऐसे जिसको भी बोलता हूं ना वो पास होता है. एड. खर्चे के लिए रिजर्व कितना किया था? कहाँ 2,000 किया था? क्या किधर है? ए गोवा तारीफ किया पिछले लेक्चर में तो फॉर्म में आ गया तू. कितना रिजर्व है? खाना खाया? क्या खाया खाना? एक गोवा के स्टूडेंट की बहुत बड़ी कंप्लेंट थी मेरे पास पहले के बैच की. बोलता था यहाँ खाना खाने में मजा ही नहीं आता सर. ही वॉज प्योर नॉन वेजिटेरियन, प्योर नॉन वेजिटेरियन, और उसको रोज नॉन वेज खाने को चाहिए. और बोल भी रहा किसको? है ना. जो आदमी नॉन वेज बोलता, ठीक है खाने वाले को प्रॉब्लम नहीं है. अंडा इज नॉट नॉन वेज. आई कैन प्रूव दैट. आई कैन प्रूव दैट. यस यस. नहीं नहीं नहीं, अभी उसके बारे में कभी बाद में फुर्सत में बात करते हैं. नहीं, बट आई कैन प्रूव दैट. नहीं नहीं, जिसको जो समझना है समझो. मैं कोई छुपा के तो है नहीं. अंडा खाते तो खाते. अब मेरे को तो दवाई बोल के दिया था, मेरे डाइट में था, कंपलसरी खाना था मेरे को. बाकी कुछ नहीं खाता मैं. तो उसका कंप्लेंट था, बोले सर आजू बाजू में मेस ऐसी देखो ना बताओ, बोले सर कि जहाँ पे रोज मेरे को नॉन वेज मिले. बोले भाई तू जा गोवा जाके रह जा.
अब ऐसी मेस मैं कहां से ढूंढ के लाऊंगा यार, है ना। सी फूड इज आई थिंक कॉमन ना इन गोवा। तू गोवा गया? बच्चों को अलाउड नहीं बेटा वहां पे माइनस। कैसे क्या गया तू? कुछ भी कसिनो में कैसे जाएगा तू? अच्छा हाँ, सिर्फ दिखाने के हिसाब से। हाँ, एंट्री नहीं कसिनो में ऐसे। हाँ, ग्राउंड फ्लोर पे वो किड्स प्ले एरिया रहता है। उधर मैं उनको छोड़ा और फिर नहीं, कहीं पे भी अलाउड नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी अलाउड नहीं। अभी मैं जेंटिंग पे था ना, जेंटिंग में और क्रूज में भी पिछले महीने जब मैं गया था, मेरे दोनों बजा, बेटा तो 17 साल का है, बेटी तो छोटी थे समझो, वो 11 साल की है, तो दोनों को भी उनको उनको बोला कि अभी हम लोग कैसीनो में जा रहे हैं। तो अभी तो बाकी बच्चे भी थे ग्रुप के, तो उन सबको फिर एक जगह पे वो जो टूर गाइड था साथ में, वो लेके गया, बोले सर आप जाओ 3-4 घंटे, बच्चों को संभाल लेता मैं इधर। तो बाकी पूरा घुमा के लाया उसने फिर बच्चों को। तो बच्चों को एंट्री कहीं पे भी नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट्स नॉट अलाउड ओनली कसिनो, कसिनो। हाँ, गैमलिंग, गैमलिंग इज नॉट अलाउड। कहा? हाँ मैं गया ना। नहीं नहीं, एक मिनट, मैं पीछे बोला ये बात तुमको। कसिनो में कोई जीतता नहीं बॉस। कसिनो ये गैमलिंग है, ये अपने तो नसीब में है ही नहीं वो पैसा। तो वहां जाते वक्त माइंड बना के जाने का कि अपन एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, इस एंटरटेनमेंट का कॉस्ट कितना देना है, माइंड यू हैव टू मेकअप। और उतना हारने वाले मालूम रहता अपने को, चुपचाप इज्जत से उतना हारने के बाद उठ के आने का। हाँ, वो लालच है नहीं तो। हाँ, बहुत कम लोग हैं जो जाके वहाँ जीत के भी आते हैं, और जीतने के लिए वहाँ जाने का पर्पज़ मेरा तो नहीं है, मेरा तो नहीं है। हाँ, तुम जाओ, तुम एंटरटेनमेंट है, जितनी तुम्हारी, तुम्हारा एपेटाइट कितना है पैसा उड़ाने का, वो हर एक का अपना अपना रहता है। मैं पहली बार कसिनो गया था तब डिसाइड करके गया था। बोला ना मैंने तुमको क्लास में, नहीं नहीं, 10,000 रुपीज लॉस और हाफ आवर विच एवर इज अर्लियर। और पहली बार कसिनो में गया भी सबसे भारी कसिनो में, वर्ल्ड के सबसे भारी कसिनो में, मकाऊ में वेनिशन। मकाऊ का वेनिशन होटल इज होटल वेयर जेम्स बॉन्ड मूवीज आर शॉट। जेम्स बॉन्ड के मूवी शूट होते हैं, इतना बड़ा होटल है वो। उसका कसिनो बोलते ग्राउंड फ्लोर, जहां तक नजर जाती है कसिनो कसिनो है, इतना बड़ा कसिनो है, अमेजिंग प्लेस। बोलतो मैं गया, पहला आधा घंटा डिसाइड किया था, हाफ आवर और 10,000 विच एवर इज अर्लियर, लॉस ऑफ 10,000। 16,000 रुपये जीते पहले आधे घंटे में। इज्जत से जाके मैंने इनकैश कराई, कैश वो कॉइन्स रहते, वो जाके मैंने इज्जत से इनकैश कराए। बोला लालच बुरी बला है भाई, 16,000 रुपये मिले ना, ये बहुत है अपने के लिए। उसके बाद 2 रात में वहाँ बैठा रहा, कि तो रुका मैं उसी होटल में था, तो मैं 2 रात बैठा रहा कसिनो में। क्या खेलते लोगों, कैसे ये यूरोप वाले तो ऐसे पैसे लगाते, तो पागल होने काम है साला। इधर अपने को 500 रुपये लगाए तो ऐसा नीचे ऊपर होता, अभी अभी क्या होता, अभी क्या होता। अरे वो ऐसे लाखों के दाव खेलते यार। किसने? पता नहीं भाई, अपने नसीब में तो नहीं है ये पैसा ऐसा, इतने आसानी से मिलने वाला पैसा अपने नसीब में नहीं है। मेहनत का पैसा है अपना। नहीं, हजम भी नहीं होता, वो तो क्या है, हजम करने वाला कौन है उसके ऊपर भी रहता। हर एक का अपना डेफिनेशन है हजम करने का। नहीं नहीं, कभी तो अपन फुर्सत में बात करेंगे। मैं बोला ना उस दिन, वो एक सेशन तुम्हारे बैच में नहीं हुआ, कि हाउ यू लुक एट ऑल दोस थिंग्स, सक्सेस, सक्सेस मैं बोला था ना, कि हाउ यू लुक एट सक्सेस इज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत अलग अलग यूनिक यूनिक कंसेप्ट आते हैं बच्चों के। कभी तो भी करेंगे फुर्सत में डिस्कशन अपन। एड एक्सेस रिजर्व फॉर एक्सपेंसेस। तूने तेरे गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए 2,500 रुपये का सेविंग किया राघव। हाँ, हाँ 2,500 रुपये। लेकिन हुआ ऐसे कि तू गया घूमने करने और 2,000 का खर्चा हुआ, तो 500 रुपये बच गए ना, बच गए ना।
बस बस उसकी ज बात है, एक्सेस रिजर्व फॉर एक्सपेंसेस 500। साला एग्जाम्पल भी क्या दे रहे हो। पटेल भाई, गुज्जू भाई, सब टोटल देखो, जनरल बातें किया पिछले 5-7 मिनट, सब एक्टिव हो गए। और उसके पहले ऐसे बैठे थे जैसे राहुल गांधी की सभा चल रही, तुमको जबरदस्ती मार के बैठाया है यहाँ सुनने को, है ना। सब टोटल 20,500। कह रहे लिटमस जगह बदल दिया, मेरा खौफ। अच्छा, डेंजर जोन बोला इसलिए, जो लोग बच गए सेफ हो गए तुम। सब टोटल 20,500। अच्छा मालू जी, कल इतना घाई घाई में गए कहाँ क्लास खत्म होते ही? कल मिलने का टाइम? हाँ, ओ हो, बॉस। आई जेन्युइनली अप्रिशिएट, ये बोलने वाला भी चाहिए। निशब्द। अरे बाप रे, इतना इतना बोर करता मैं? 1 घंटा ज्यादा हो गया। अच्छा, कल भी 4:15 तक का ही टाइम था क्या? नहीं तो तुम कुछ गलत समझ रहे हो, ऐसा है नहीं। नहीं नहीं, वो गलत लिख रहे हैं, अमित सर का ध्यान नहीं है। अरे अकाउंट्स का लेक्चर होगा तो 2 घंटे का होगा ना रे भाई। वाह भाई वाह, जोरदार है तू एकदम, है। बस वो रीजन है तो ठीक है, तूने जेन्युइनली बता दिया। मला क्या, नहीं तो मिलने का टाइम फिक्स हुआ था, लेट हो गया, अब जाके 2-4 गालियां फटके खाएंगा तो नहीं ना। श्योर। हाँ, आज तूने मेरे को और एक मेरे पुराने स्टूडेंट की याद दिला दी। वो मेरे को बोला था कि ये ऐसे ही बोल, तो जितना मस्त तूने एकदम फ्रैंकली बोला जो है वो मेरे को एक बार बोला, मोबाइल के ऊपर कुछ तो डिस्कशन हुआ, एंड आफ्टर द लेक्चर ही केम एंड वो बोला कि सर टाइम है क्या आपके पास? मतलब है ना। उसका पूरा ग्रुप आया, वो 5-7 लोगों का ऐसे, और यहाँ केबिन में आके बैठे हम बातें करते। वो मेरे को बोला, सर आपने जो बोला ना आज, हर चीज़ दिमाग में परफेक्टली फिट हो गई। बोले सर मोबाइल के प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन अब मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, बोले सर उसका जवाब दो ना आप। वो मेरे को बोला कि बोले सर 4th स्टैंडर्ड से मेरे पास मोबाइल है, 4th स्टैंडर्ड से, और बोले सर अब मेरा 12th हो गया है, इतने सालों से मैं वो मोबाइल यूज कर रहा हूँ, एंड आई एम एक्चुअली एडिक्टेड टू दैट। मेरे को अब उसका एडिक्शन हो चुका है सर। आप बोले वो सब चीज समझ में आई मेरे को, बट अब मैं इसमें से बाहर कैसे आऊं? आप आपकी जगह सही है, टीचर बोल के आप समझा रहे, आप आपकी ड्यूटी पूरी कर रहे, एंड आपका पूरा रिस्पेक्ट है सर, फुल रिस्पेक्ट है आपके लिए, आप कुछ भी गलत बोले नहीं हो, हमारे लिए बोले। बट सर ऐसा एडिक्शन है कि मैं करूं क्या इसका? अब इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। उसका करेक्ट है ना रे, मेरा बोलना हो गया। अरे बट वो बोलता है कि सर पिछले में 6-8 सालों से मेरा रूटीन में है, मेरे वो मोबाइल हो रही है, मैं कैसे छोड़ दूं उसको आज? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। वो तो जेन्यूनली मेरे को बता रहा था उसका कंसर्न। अब मैं क्या करूं? मतलब इसका तो एक ही सोल्यूशन है कि तेरे को थोड़ा सा तेरा सेल्फ कंट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, और थोड़ा दूर धीरे 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 होगा। तो ऐसे अचानक से बोलेंगे कि आज से मोबाइल देखेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ग्रेजुअली कोई भी चीज़ डेवलप होगी, ट्राई कर तू। वो नहीं किया कंटिन्यूस ये, ही लेफ्ट, बट वो आज भी मेरे कांटेक्ट में है, अभी भी कांटेक्ट में हो मेरे, रेगुलर मेरे को बात करता है बीच बीच में। उसने कुछ तो बड़ी एक कंपनी भी निकाली है, तो उसके लिए भी बोल रहा था सर इनॉग्रेशन पे आप आओ। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि ये जेन्यून प्रॉब्लम्स है, जैसे पेशेंस खत्म हो गए क्लास में बैठने के, होता है, ऐसा होता है। तो अभी थोड़े पेशेंस बढ़ाने पड़ेंगे बेटा। हाँ? चाय मंगाओ? हाँ? चाय लेगा? चाय? हाँ? कॉफी? नहीं, मैं मंगाने नहीं वाला, पूछा है।
मालू जी ने क्या बोला सर? अरे ऑनलाइन में पूछ रहे मालू जी ने क्या बोला, तेरे बारे में इंक्वायरी हो रही। अरे वो कल क्या हुआ था, क्लास छूटा ना तो इतने घाई घाई में निकला वो बाहर। अभी तक मैं यहाँ से उठा भी नहीं, ढंग से तुमको बाय बोला भी नहीं था तब तक। तो ऐसे निकला बाहर जाने के जैसे कि कोई इंतजार कर रहा है बाहर, है ना। मस्त पुणे जैसे रोमांटिक जगह है, बारिश का मौसम है, हरियाली हरियाली, मतलब ये झाड़ वाड़। सो तो मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ, इतने घाई में कहाँ जा रहा था, तो उसने जो जवाब दिया वो जवाब बहुत भारी था अभी। तो वो बोला कि क्लास में बैठने के पेशेंस खत्म हो गए थे। तो भाई थोड़े पेशेंस बढ़ा ले, हाँ ये तो मैं नहीं बदलूंगा। सब टोटल 20,000, 500। तेरे को मेरी तरफ से कैडबरी है, थोड़ी डिजर्व करता है। कल ले आता मैं कैडबरी तेरे लिए, लेस। क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, उसने कुछ ऐसा गलत थोड़ी बोला। उसने जो है वो बोला, और उसका जिस तरीके से स्पॉन्टेनियसली निकला ना ऐसा। How was our intermediate, you know? Now you will be joining articleship after intermediate, na? When I was doing my CA, after foundation, एक तो फाउंडेशन 1.25 साल बाद था, 12th के 1.25 साल बाद फाउंडेशन था। आफ्टर आई अपीयर्ड एंड पास्ट फर्स्ट ईयर बीकॉम, देन आई अपीयर्ड फॉर फाउंडेशन। 1 साल बाद, 1.25 साल बाद फाउंडेशन होता था। बोल तो मार्च में तुम एग्जाम दोगे ना, अगले मई में फाउंडेशन की एग्जाम होती थी। एंड इमीडिएटली आफ्टर पासिंग फाउंडेशन यू वर टू गो फॉर आर्टिकलशिप, एंड along with articleship you were to complete intermediate. So articleship morning 10 to 6, दिन भर में तो आर्टिकलशिप में, एंड मॉर्निंग में इवनिंग में क्लासेस, एंड होमवर्क भी करना। तो आज जो ये बच्चे क्लासेस कर रहे हैं ना, सवेरे 7:30 बजे से इंटर के 7:30 से शाम में 5:30, ये इनके पास फुर्सत में टाइम है क्लास करने को भी और पढ़ाई को भी। हमको 10 से 6 ऑफिस करना पड़ता था, और उसके पहले और क्लास करो, रात में आने के बाद में शाम में ऑफिस से फिर होमवर्क करो। और सिलेबस तो उतना कि उतना ही था, ऐसा कुछ नहीं कि सिलेबस अब बड़ा है, सिलेबस उतना ही था उस टाइम पे भी। इट वॉज वेरी हेक्टिक रादर। तो उस वजह से हमारे पेशेंट्स थोड़े ज़्यादा बड़े हुए हैं, और अब बढ़ गए तो वो वैसे ही है, कम नहीं होते। तो तुमको मैच करना पड़ेगा मेरे पेशेंट्स के साथ। आज देखते हैं अपन किसके पेशेंट्स खत्म होते हैं। थैंक यू काका, थैंक यू। मालू जी पानी पियेंगे? So tomorrow's timetable locked, 9 to 11, 9:30 to 11:30, and 11:45 to 1:45. Done. MCQs है क्या? हाँ। और पेपर वापस सबमिट होते हैं क्या? तो कल घर पे दे दो टेस्ट। नहीं नहीं, इसको क्या मतलब है, वो दैट मच सिंसियर यू हैव टू बी। ऐसे थोड़े रहता, अभी घर पे देना तो मजा नहीं आता, बोलते मजे लेने के लिए पेपर है क्या? मजा नहीं आता। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो कितने बजे। मेरा क्लास का टाइमिंग लॉक हो गया, 9:30 से 11:30, 11:15 से 1:45, 1:45। पेमेंट टू ऑल इन PSR बोलो। 10,250
68 and आया। कितने मार्क का टेस्ट है तुम्हारा बाय द वे? 100 मार्क्स का है, 1 घंटा तो लगेगा ही। बैलेंस इन कैश डैश। क्या है, अगले वीकेंड पे मैं हूं नहीं, तो अभी अपने को ये डबल लेक्चर मिल रहे तो ले लेते हैं। नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली इवन फ्राइडे आई वोंट बी देयर। देयर फॉर रियलाइजेशन लॉस बोलो। थर्टी वन। हम्म। आया। कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। आया सबका? समझ में आया? 32nd प्रॉब्लम। नहीं 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 नहीं, अभी सॉल्व करना है। होमवर्क नहीं, होमवर्क देता हूं मैं, है होमवर्क। होमवर्क 29th है, 32nd अभी करेंगे अपन। पहला स्टेटमेंट बनाते, सिर्फ ध्यान रहे पहले स्टेटमेंट में। एक मिनट, ये प्रॉब्लम में करंट अकाउंट्स है और करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंसेस है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, जनरल रिजर्व ऐड करते करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंसेस लेस करेंगे तो अराइव एट इफेक्टिव कैपिटल्स। करो सॉल्व। फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट स्टेटमेंट बनाओ। या करूं मैं सॉल्व? करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंसेस है, वो कैपिटल में से लेस करो टू अराइव एट इफेक्टिव कैपिटल्स। जनरल रिजर्व ऐड करते वैसे डेबिट बैलेंस इन करंट अकाउंट्स लेस करो। नहीं ना, नहीं ना, तुम्हारे इफेक्टिव कैपिटल ही गलत हो जाएंगे ना। करंट अकाउंट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कैपिटल। बिकॉज कैपिटल्स आर फिक्स्ड, करंट अकाउंट्स आर ओपन।
चलो ठीक है, तुम भी क्या याद करोगे? ये आज का आखिरी प्रॉब्लम बस। प्रॉब्लम आखिरी है ये, आखिरा आज का। इसके बाद प्रॉब्लम नहीं लूंगा मैं। प्रॉब्लम नहीं लूंगा। हाँ। प्रॉब्लम नहीं लूंगा मैं आज। आई एम वेरी केयरिंग, फॉर स्टूडेंट्स। So this is the last problem for the day. Last problem. उसको मोटिवेशन आ गया एकदम। हैं? क्या हो गया? चलो चलो चलो, आज का आखिरी प्रॉब्लम है। आज का आखिरी प्रॉब्लम ही है। क्या तो इस मेथड का ही आखिरी प्रॉब्लम ही है? तो इसके बाद अगली मेथड पढ़ेंगे अपन। वो मेथड सिखाने को 45 मिनट्स लगते हैं। नहीं, अब लिखना पड़ेगा कि नहीं वो सब तुम अभी से कैसे पूछते? मेरा प्रॉमिस प्रॉमिस है कि प्रॉब्लम ही आखिरी है आज का। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगा मैं। डेबिट बैलेंस इन करंट अकाउंट्स लेस किए। ऋषि सुनक लॉस्ट द इलेक्शंस, यूके। ऋषि सुनक, हाँ हार गया ना, इलेक्शन हार गया। केयर स्टारमर न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। ऋषि सुनक कौन है ये तो मालूम है ना? इंडियन ओरिजिन के एंड इन्फोसिस फाउंडर के जवाई, नारायण मूर्ति के जवाई। दामाद।
कहाँ है? यहाँ नहीं रहेगा। मुझे नहीं मालूम, मतलब मैं वो बॉटल का पानी पीता नहीं वैसे भी। प्लास्टिक बॉटल का पानी नहीं पीता, मेरा बॉटल अलग है। यहाँ है नहीं वैसे भी। कहाँ है? मेरे को तो दिख नहीं रहा है। कहाँ है रे? हो गया? Still, UK has the same mentality, eh? British mentality. One of our students is there in London right now. So he had come to meet me some 3-4 months back. So he was like कि अभी भी वही उनका मतलब रेसिज्म और ये आज भी है वहाँ पे। एंड इंडियंस को तो ऐसे ही समझते कि आज भी वो राजा है, नहीं ये गुलाम है। अभी भी मेंटेलिटी लोगों की बदली नहीं बोलते वहाँ पे। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? चला करे स्टार्ट। टेक योर ओन टाइम गाइज, नो प्रॉब्लम। क्या क्या? मुझे भी घर ही जाना है भाई। 9 बजे रखो ना क्लास। ये सब बोल रहे ऑनलाइन। तुमको क्या है रे? मस्त 8:45 को उठते रहेंगे, नींद में से बैठते रहेंगे। 9 बजे भी उठा नींद में से तो क्या समझने वाला, वीडियो तो ऑन करते नहीं। मस्त सोए सोए लेक्चर देख रहे। ये बेचारे बच्चे जो रोज आते, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक, बिना नहाए आते, वो छोड़ दो, बट कितने लोग नहा के आते सर? सच्चे सच्चे है। कुछ भी झूठ झूठ। मालू जी तुम तो हाथ ऊपर करो ही मत। टाइम नहीं है नहाने को। चले करे स्टार्ट। लुक एट द स्क्रीन। ए बी सी। चेक करना पड़ेगा ना भाई। तेरे को इतना कॉन्फिडेंस है, तूने करेक्ट किया है। ढोकले 40 30। क्या बात है, थैंक यू। वीडियो ऑन करते हैं सर। वी आर सुशील सर स्टूडेंट्स। नहाते ही बैठते हैं, वाह वाह। क्या क्या? नहीं, आई टू स्टेड इन हॉस्टल फॉर अराउंड 7 years। बट मुझे याद नहीं आता कि मैं ऐसे हॉस्टल में रहा हूँ, नहाया नहीं, ऐसा नहीं। नहाता तो रोज था, भले दोपहर में नहाओ। नहाना इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है इफेक्टिव कैपिटल्स। PSR 433। 10,000 8667 आया। लोएस्ट
3, 2, 1. Let's have comparison between all of them. 40, 26, 24. Whose base will be taken? C. 32. करेक्ट है. 8, 2, nil. So excess of A and B over C, 8 and 2. Then compare between A and B, 40, 26. Who has the lowest in these two? B. 8667 into 4, 34, 668, 26. So excess of A over B, 5, 5332 dash dash. Summary. First we will be paying to 5332, then 2668 2000 dash. 4:3:3. Everybody got it? सबका आया? देखो, statement showing distribution of cash under highest relative capital method. आई थिंक लाइबिलिटीज में सिर्फ क्रेडिटर्स ही है, पार्टनर का लोन भी नहीं है. बनाया फॉर्मेट या बाकी है? ऑल ऑफ यू आर रेडी विद द फॉर्मेट? मालू जी स्टार्ट करो या थोड़ा वेट करना है? करें. इफ यू आर कंफर्टेबल वी विल कंटिन्यू. सो नाइस ऑफ यू. प्रॉब्लम नंबर पूछा किसी ने तो अभी 32. somebody asked problem number 32 number. नहीं नहीं पूछा किसी ने तो प्रॉब्लम नंबर, इसलिए तो बोल रहा. मेरे क्या ऐसे बोल रहा क्या मैं? वो लाइन मार बेटा फटाफट. नहीं अच्छा बच्चा है वो.
Ready format? First April 22. Cash balance 3000. Balances brought down. Creditors 37,000. 40, 30, 27. I want all of you to read carefully the first realization. May 2022, 15,000 from debtors and 20,000 by sale of stock. Expenses on realization were 500. May 2020, एक मिनट उसके पहले, sorry, less debit balance in current accounts. Balance in capitals 40, 26, 24, right? First realization May 2022. May 2022, debtors and stock realized bracket net of expenses. Debtors and stock realized कितने net of expenses? 34. Subtotal 37, 500. Before we give the effect of payments, read what is written in the last paragraph. Partners decided to keep a minimum cash reserve of 2000 in first 3 months and rupees 1000 thereafter. 2000 रुपये का मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन करेंगे पहले 3 महीने तक, उसके बाद में 1000 रुपीज़ का. So basically now you have 37,500. Can you distribute fully 37,500? We need to keep balance of 2000. Less. Whom to pay first? Payment to creditors. I'll be paying 35,500. Got it? Paid to creditors 34,500. क्या हो गया? डिस्टर्ब मत करो रे. Balance in creditors and balance in cash
2000, तो जो 2000 का बैलेंस चाहिए वो रखा है। अगला रियलाइजेशन कब है? जून 22। डेटर्स एंड स्टॉक रियलाइज्ड अगेन। थर्टी सब टोटल how much is remaining to be paid to creditors? Less payment to creditors. 1000 balance in cash 34,500 and balance in creditors nil. आया? No other outside liability, and even there is no partner's loan. So now whatever balance is left, it will be paid towards partners' capitals. In capitals, we will be paying first to surplus capitals to whom? A. How much surplus capital he has? 5332 less payment of surplus 32 5332 paid to A. Balance in cash कितना? 168. How 160? 178. हाँ बराबर. अब किसको दे? अच्छा इधर कैपिटल्स में कितने बैलेंस है? नहीं नहीं कैपिटल्स में 66 then 20 and आया. पेमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल्स दोनों को मिला के कितना है?
पेड टू ए एंड बी, कितना कितना? 2668 2000. Balance 24. Balance in capitals 32 24 24. बरोबर. अब ये किसको दे? Payment of capitals. You can't distribute full amount. 2000 rupees balance you need to maintain. So 22,500 ही पे कर सकते हैं अपन. Paid to all in PSR, that is 433. बोलो. हाँ, 9,6750. Balance 23. एक साथ 250. एक साथ 250 आया. नेक्स्ट कब है? जुलाई, अगस्त में. मशीनरी रियलाइज्ड. ब्रैकेट नेट ऑफ एक्सपेंसेस कितना? एक साथ 400. सब टोटल 19,400 रुपीज. लेस पेमेंट ऑफ कैपिटल्स. बोलो बेटा. करेक्ट. 18,400. 3 महीने हो गए. जुलाई और अगस्त. जुलाई तो पकड़ना, जून और अगस्त के बीच में जुलाई आता है. अरे जनवरी फरवरी. बोलो बेटा. 73605520.
बैलेंस इन कैश, सोलह, 15, 15, 640, 11, 730, 11, 730, बरोबर. देन लास्ट रियलाइजेशन सप्टेंबर, machinery realized 30,000, add machinery taken over by A, बोलो बेटा. सब टोटल 41,000. अब क्यों रखेंगे बैलेंस 1,000 रुपए का? लास्ट महीना है, ये लास्ट रियलाइजेशन है. डोंट कीप नो बैलेंस. आप बैलेंस रख के क्या करेंगे? फाइनल सेटलमेंट है. सो टोटल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड लेस बोलो कितना कितना पे करेंगे? हाँ 16, 12,300, बैलेंस इन कैश डैश and therefore realization profit. Why profit? Excess repayment is done of capitals. कितना? 760, 570 आया. हो गया. ट्वेंटी नाइन्थ प्रॉब्लम, पेज नंबर 159. हाँ ना, लास्ट प्रॉब्लम था ये, होमवर्क है. 29 सम होमवर्क. 5,000 रुपये रिजर्व करने के लिए बोले एक्सपेंसेस के लिए. 5,000 रुपीज आर टू बी रिजर्व फॉर एक्सपेंसेस. सो पहले ही 5,000 रुपये रिजर्व कर लेना. लास्ट में पता चला, लास्ट में नहीं, थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद पता चला कि 4,000 का खर्चा हुआ है, तो 1,000 रुपये ऐड होंगे. ध्यान से सुनो, बाद में तुम बोलोगे सर आपने बोला था लेकिन ध्यान नहीं रहा है या आपने बोला नहीं. 1,000 रुपये ऐड करने वाले हम लोग. थर्ड में ऐड करना है, थर्ड में.
क्या बोले सर? थर्ड में ऐड करना है। तुम लिखोगे थर्ड इंस्टॉलमेंट रियलाइज कितना है? 21,000। 21,000 वहीं पे ऐड एक्सेस रिजर्व फॉर एक्सपेंसेस 1,000। समझा क्या बोला? बाकी एकदम बेसिक सम है, होमवर्क कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं। होमवर्क 29th। With this we finish with 29, 30, 31, 32. The last part of partnership, the second method of piecemeal, and that is maximum loss method. क्या बोला? नेशनल लॉस बोलते हो? नोशनल लॉस। It is maximum loss method. Maximum loss method, the second method of piecemeal distribution. First method is this one which we solved. 3 sums क्लास में सॉल्व हो गए, एक आप होमवर्क कर लेना। कल अपना डॉन, छोटा डॉन, नहीं तू नहीं, ये तेरा नाम भूल गया बेटा मैं, वेंकटेश कल लेक्चर खत्म होने के बाद आया। मैं जो ये आपको समझा रहा था ना, हाईएस्ट कैपिटल्स सरप्लस कैपिटल का कैलकुलेशन, ये वो बोला मेरे को सर कि ये मैंने तो 2 मिनट में सॉल्व कर दिया। ये जो आपने किया ये मैंने 2 मिनट में सॉल्व कर दिया। कल उसने मेरे को लाके दिखाया। वो जिस तरीके से उसने सॉल्व किया वो अपना सेकंड मेथड है। पर तेरे केस में मैंने बताया कि प्रॉब्लम क्या आ सकता है, राइट? मैंने सिंपल करने के लिए एग्जांपल को क्या कर दिया था कि थर्ड इंस्टॉलमेंट 50,000 की रियलाइज हुई एसेट की बोल के दिया था। अगर ये थर्ड इंस्टॉलमेंट 25,000 की रहती, उसके बाद में और एक इंस्टॉलमेंट 20,000 का रहता, ऐसे अगर बाइफर्केशन आता तो तेरी मेथड काम नहीं करती। बट तेरा लॉजिक तो सही है, तो वो लॉजिक से और एक मेथड है यही पिसमील डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो है मैक्सिमम लॉस मेथड। तो क्या होता है एग्जैक्टली मैक्सिमम लॉस मेथड में? डोंट वरी गाइस, इसका प्रॉब्लम आज सॉल्व नहीं हो सकता। द रीजन बीइंग थोड़ा सा समझने में, थोड़ा कंपेयर टू दिस मेथड अभी जो हुआ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। डिफिकल्ट एज सच बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसा नहीं, बट ये बहुत ही बेसिक था ये कैलकुलेशन जो अपन ने की है। मैक्सिमम लॉस मेथड थोड़ा स्टार्ट में समझने तक थियोरेटिकली दिमाग में बैठता नहीं। वंस वी सॉल्व वन प्रॉब्लम इट विल बी क्लियर टू यू कि क्या करना है। बट फॉर दैट वी नीड टू सॉल्व वन प्रॉब्लम एंड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है, टाइम भी लगेगा। समझ लो पहले मेथड, फिर बाकी अपन कल करेंगे। What happens exactly is up to payment of partner's loan, I'm repeating, up to payment of partner's loan, method remains absolutely same what we did in this first method, highest relative capital method. हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड में पार्टनर के लोन रिपेमेंट तक का जो प्रोसीजर है वो एज इट इज मैक्सिमम लॉस मेथड में भी होगा। मतलब यू विल बी फर्स्ट पेइंग टू secured creditors, then unsecured creditors, then partners loan and then partners capitals. मेथड कहाँ बदलता है? कैपिटल रीपेमेंट में मेथड बदलता है। जस्ट मैं जो बोल रहा हूँ वो नंबर्स पे कॉन्सेंट्रेट करो। लेट्स से 3 पार्टनर्स है ए बी सी, तीनों पार्टनर का मिला के कैपिटल 1 लाख रुपए। हाउ मच? 1 लाख। तीनों का मिला के पुट टुगेदर कैपिटल ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स इज 1 लाख रुपीज। लेट्स से आफ्टर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन द अवेलेबल कैश बैलेंस एट दैट स्टेज इज 10,000 रुपीज। हाउ मच? 10,000। I'm repeating, total capital outstanding is 1 lakh. Total capital outstanding is 1 lakh. And after payment of partner's loan, amount available for distribution towards capitals at that stage is 10,000 rupees. You have to make one assumption, and that assumption is this 10,000 is the last realization. After this, we are not going to have realization. अज्यूम करो कि ये लास्ट रियलाइजेशन है, इसके बाद कुछ रियलाइज नहीं होगा। फाइनल 10,000 है अपने पास। अपने को मालूम है प्रॉब्लम में लिखा हुआ रहेगा बाद में ये रियलाइज हुआ,
वो स्टेज पे अजम्पशन करने का कि दैट इज लास्ट रियलाइजेशन. नाउ टेल मी, अगर वो लास्ट रियलाइजेशन है, इफ इट इज लास्ट रियलाइजेशन, then maximum amount that will be distributed among partners is 10,000 only. ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 10,000. What was the capital? 1 lakh. What is the maximum amount that can be distributed? 10,000. So what is the maximum loss? At that stage, maximum loss is 90,000. उस स्टेज पे 90,000 का मैक्सिमम लॉस आया. Distribute this loss of 90,000 among all the partners in their profit sharing ratio. Notional है what he was referring as. Notional loss है ये. तो उस स्टेज पे ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा 90,000 का. Distribute 90,000 among all the partners in their profit sharing ratio. Now what will happen? What were the capitals of partners? Total capital, total 1 lakh. Total amount distributed, maximum loss 90,000. 90,000. So out of 1 lakh rupees capital, 90,000 is loss is given. So what is the balance? 10,000. That much balance you have with you. Pay that 10,000. जो भी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 10,000 का बाइफर्केशन आएगा. वो क्या किया समझा? वापिस एक बार. टोटल कैपिटल कितना था? What is the balance available? 10,000. And assume this is last realization. इसके बाद कुछ realize नहीं होगा. So what is the maximum loss? 90,000. Distribute that maximum loss in profit sharing ratio among all the partners. So 1 lakh rupees था तीनों का मिला के. Individual जो भी figures भी रहेंगे. Individually हो सकता है it is 40,000, 30,000, 30,000. जो भी रहेगा whatever. From that deduct the maximum loss. Remaining amount will be 10,000. उतना कैश तो तुम्हारे पास अवेलेबल है. तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो 10,000 तीनों में, जो भी बैलेंस बचा उतना. टोटल इज गोइंग टू बी 10,000. ये 10,000 पे होने के बाद, आफ्टर पेमेंट ऑफ दिस 10,000 रुपीज बैलेंस, व्हाट विल बी द आउटस्टैंडिंग कैपिटल? 90,000. अरे सब लोग बोलो रे, हाउ 90,000? 1 लाख था, 10,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया. सो व्हाट इज द कैपिटल लेफ्ट नाउ? 90,000. लेट्स से आफ्टर 12 days 20,000 rupees are realized. 20,000 रुपए रियलाइज हुए. Assume this is last realization. Now what will be the maximum loss? 70,000. How 70? 90 minus 20. 70,000. Distribute 70,000 in profit sharing ratio. What is the maximum loss? 70,000. Distribute 70,000 maximum loss in profit sharing ratio. कैपिटल कितने बच गए थे? 90,000. मैक्सिमम लॉस रिमेनिंग 20. उतना कैश है, दे दो 20,000. कुछ जा रहा है कि दिमाग में? हाँ? कैश जो देना है वो किसको कितनी देना है, उसके लिए मैक्सिमम लॉस का शेयरिंग करना पड़ेगा ना. अब तेरा कल वाला फंडा जल्दी काम करेगा ये समझाने के लिए. लुक एट द स्क्रीन. कितना कैपिटल था कल के प्रॉब्लम में तीनों का मिला के? 87,000 था. और कैश कितना था मेरे पास? 50,000 था. बराबर ना? 87,000 का टोटल कैपिटल था. ए बी सी कितना कितना था? 27,000. 40 था. 40, 27, 20. बराबर. ऐसे 87,000 था. अब मेरे पास कैश कितना है देने के लिए? ज्यादा से ज्यादा 50 ही दे सकता ना मैं. तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 37,000 मैक्सिमम लॉस होगा मेरा. ये 37,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे दूं तीनों को. अरे ढोकड़े, 87,000 का कैपिटल है. ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकता मैं? 50,000 दे सकता. तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा?
37,000, वो मैक्सिमम लॉस तीनों पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देना है ना, तो वो दे रहे. अरे रुक ना, हे उतावळा नवरा आणि गुडघ्याला बाशिंग आहे. आता याला एवढं मराठी कळलं तर काय होईल. कळते काय अर्थ त्याचा, नवरा उतावळा. 50,000 का क्या होगा, अबे वो तो ढूंढने के लिए कर रहे सब. मैक्सिमम लॉस कितना, 37,000. तो मुझे मालूम है कि 87,000 का टोटल कैपिटल है, 37,000 का मैक्सिमम लॉस गया तो 50,000 कैपिटल बचेगा. वो तीनों में देना है मेरे को. किसको कितना देना है ये कैसे ढूंढे, उसके लिए ये सब चल रहा है. देना कितना है, नहीं 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 नहीं, बैलेंस कितना है, 50,000 देना है. बट ए को कितना, बी को कितना, सी को कितना, ये कैसे, उसके लिए ये एक्सरसाइज है पूरा. तो 37,000 मैक्सिमम लॉस आया, वो मैक्सिमम लॉस जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें दे दो, जो भी रहेगा. अब वो दे दिया समझ, जो भी XYZ अमाउंट आएगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. अब मेरे को बताओ कैपिटल में से ये टोटल 37,000 लेस करेंगे तो ये बचा हुआ 50 ही रहेगा ना. वो जितना बचता है उतना दे दो तीनों को. दैट मच यू हैव टू पे. सो जो तुम्हारे पास कैश बैलेंस है वो किसको कितना देना है ये ढूंढने के लिए एक्सरसाइज है. हाँ, तो अपन कहा थे एग्जांपल में अपना कैपिटल कितना बचा था, 70,000. 70,000. अब लेट से उसके बाद रियलाइज हुए 40,000 रुपए. अज्यूम इट इज लास्ट रियलाइजेशन. सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम लॉस, 30,000. डिस्ट्रीब्यूट 30,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. व्हाट वाज योर अनपेड कैपिटल, 70. 70 माइनस दिस 30, 40,000. उतना कैश है, दे दो 40,000. एंड दिस कंटिन्यू स्टिल लास्ट रियलाइजेशन. जब तक लास्ट रियलाइजेशन होगा नहीं तब तक ये कंटिन्यू होगा. मैं बोला ना ये ओरली समझने में थोड़ा टाइम लगेगा. ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा जम्बलिंग होता है जब अपन ओरली समझते हैं. जब प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इट इज़ वेरी सिंपल. अगेन बेसिक ही है, बट ओरली जब समझते हैं ना पहली बार तो जल्दी दिमाग में बैठता नहीं कि एग्जैक्टली कैलकुलेशन कैसे कैसे होंगे. एनी प्रॉब्लम गाइज, देखो मालू जी बोलू ना या कैसे, कल सवेरे बोलू, पेशेंस है ना अभी. तो द मोमेंट यू से सर स्टॉप, आई स्टॉप. ध्यान दो, जाओ जाओ जाओ, कल लिखा के भी देता हूं और पूरा समझा के दे जाओ. तुम भी क्या याद करोगे, जाओ. सी यू टुमारो गाइस, थैंक यू.